लेक्चर्स में तुम लोग को इतने डाउट्स आते हो और क्वेरीज पूछते हो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. Now we'll start with the practical, which is this one, what if analysis. Now apply the what if analysis for data visualization, design and generate necessary reports based on the data warehouse data. Simply here it's saying data warehouse data, but I'll not use a data warehouse data, but I'll explain this using my own example of what if analysis. Now what if analysis का मतलब क्या है? देखो, what if this happens, what if that happens, what if number of cases increase, whether we are going to resume college, whether not, whether online, whether offline, what if this happens, what will be the means, what will be the conclusion, what will be the solution. So what if analysis we perform using, see in this subject I have told you all right, that there are a number of tools which we are going, let's say excel की है हम लोग ने, power bi की, sql server की और r tool की. Now if you deeply understand all these all these tools which we are using into PI practical, all these tools are used for analysis purpose. Now जो तुम लोगों का broadsheet आती है, consolidated mark sheet, वो भी किस में होती है? mainly पहले excel sheet में होती है ना. excel में they have, let's say all the internal theory practical of marks of all the 5 subjects. उसके बाद उसका grade होता है, grade के बाद pointer होता है, लास्ट में pointer final pointer आता है, उसके बाद grade आता है, grade के बाद let's say percentage नहीं होता है, but if you want to calculate percentage, CGPA का percentage you can calculate. Getting? So this is what done for analysis purpose. Excel, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, और पावर बीआई, एंड देन एसक्यूएल सर्वर का जो डेटा है वो हम लोग इधर वी कैन टेक इट इनटू पावर बीआई, वी कैन टेक इट इनटू एक्सेल, एंड वी कैन डू द एनालिसिस फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. हाउ द पीडीएफ इज बीन क्रिएटेड, यू मस्ट हैव सीन जो सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आया, और व्हाटएवर सेमेस्टर 1 2 3 4 रिजल्ट्स, यू गेट इट फ्रॉम consolidated results I'm talking about. So this is the data which has been taken, extracted, transformed and loaded into the system, target system, चाहे वो BI, Power BI हो, चाहे वो अपना Excel का tool हो. Analysis होती है, and then we generate reports with the help of consolidated mark sheet, or if I want I can generate the report here. So also what I'm trying to explain here is, again if we want to perform what if analysis, we will use one Excel, we will use a tool which is Excel. Now here we'll do like I'll explain, as I've said that I'll explain with my own example. Now we'll say, hold on, let me just write the table. Let's say I'll write product, any product you can write, wheat, jawar, any product you can write your product, variable, consumable product, whatever it is. Then I'll write the quantity. So I'm writing this QTY, quantity in terms of kg, and then I'm writing price in terms of rupees. Okay. Now if you can see over here what have I done, I have just written a normal basic table I have created. इसमें मैं लिख रही हूँ कि product है, visible now better, product है, और product क्या है मेरा? rice है. quantity, let's say I'm producing 120 kgs of rice per day. ठीक है, मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, या मैं आई एम गेटिंग इट इन माई रिटेल शॉप और होलसेल शॉप, एंड देन आई एम सेलिंग इट एट द प्राइस ऑफ रुपीज, एक मिनट, ये सब क्या जा रहा है? Okay, so if I'm buying 120 kgs of rice, or if I'm producing it and I'll sell, let's say I'm selling it at the rate of 48 rupees, what will be the total I'll get it? So what will be the total we'll get it? Obviously the total will be 128 into 48. ठीक है. Now we'll do it according to what if analysis. First अभी इसका total, everyone I don't know if you all know how to work with Excel. Now इसका अगर total निकालना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा? 128 into 48. So I'll not do randomly, means I'll do it with the help of formula. So यहाँ मुझे output चाहिए, तो I'll put what? Equal to this cell multiplies by this cell. ठीक है, मतलब F6C टेबल है ना, ये एक्सेल शीट टेबल के फॉर्मेट में, एंड टेबल इज कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो यू कैन सी कि ये कॉलम F है और रो 7 है, means row 5 है quantity, row 6 is what my price of the product, and if I multiply my row 5 and row 6, F5 and F6, I'll get the output. So I'm putting enter.
So you can check out via, when you do it with the help of calculator, you will get the same answer, which is 156. Hold on, 565760. So if I am selling, understand, I'll repeat it again. If I'm selling 120 kgs of rice at the rate of 48 rupees, my total outcome, my target, my sale price will be equal to, means the amount which I'm getting will be equal to 5760 rupees. Okay. Now what if analysis में we'll do कि what if the quantity increases, so मुझे कितना सेल मिलेगा, मतलब टारगेट टोटल कितना आएगा. What if the price increases, what if both increases, price is also increasing or decreasing, it's not compulsorily increasing, increase decrease हो सकता है. So we do it like Monday, so like let's say I am a shopkeeper and then I'm selling on daily basis like rice and all. So I'm keeping a record in my system. Monday itna production tha, itna, like we have sold rice at ₹50 per kg. What is my total outcome? Tuesday, Wednesday, Thursday. Then like individual sheets I'm storing for individual day. Then for the entire month, let's say February is done, so I have to calculate कि पूरा total sales कितना kgs हुई, कितना amount, कितना I have sent, like per day I have sold it for 50 rupees, 48 rupees, 45 rupees, whatever. And for the entire month I want to do the calculation कि total sales कितना हुआ. ठीक है. So what if the price increases, what if the price decreases, quantity increases, demand increases, supply decreases, whatever it is. So we have this when we see the menu bar, which is also called as a ribbon. If you go to the data tab or data ribbon, you can see something called as what if analysis over here. दिख रहा है what if analysis. Now if I click on this what if analysis, see I'm just keeping the cursor, try out various values for the formulas in the sheet. Scenario manager होता है इसमें, गोल देखो मैं क्लिक करती हूँ, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं. We have scenario manager, each one of them will do it today. Scenario manager, goal seek और data table. Each one will understand what is the actual meaning and how we are going to use it. So see यहाँ पर description है, I'll just keep my cursor. Scenario manager allows you to create and save different groups of values sorry, values or scenario and switch between them. So let's say I was talking about ना मेरा Monday का sales इतना हुआ है, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So I'll do that with the help of scenario manager. Goal seek, let's say मुझे goal चाहिए कि for this month I want to achieve a sales of 15,000. I want to achieve, month I'm talking about, या week, I want 20,000 सेल्स होना चाहिए. सो हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ राइस आई हैव टू डू, या मुझे कितना राइस बाय करना चाहिए सो दैट आई कैन सेल इट इन माय ओन शॉप, वेदर इट इज रिटेल और होलसेलर, व्हाटएवर शॉप. सो गोल सेक विल फाइंड आउट, राइट इनपुट, यू नो द एग्जैक्ट रिजल्ट यू वांट, कितना चाहिए रिजल्ट मुझे, 15,000 का सेल, 20,000 का सेल. एंड द लास्ट वन है डेटा टेबल. टेबल इन द सेंस एक टेबल क्रिएट करेगा जिसमें आपकी क्वांटिटी 120 kg है, प्राइस इतना है तो टोटल सेल, क्वांटिटी आपकी 130 kg से प्राइस इतना है तो कितना टोटल अमाउंट होगा. सो इट विल क्रिएट अ टेबल वेर इन योर क्वांटिटी एंड प्राइस विल कीप ऑन वेरिएटिंग, चेंजिंग. So let's proceed with here. I have told you, right, I'll not take data from data warehouse. I'm creating my own table. Same you can explain me with exam. Now Excel is with everyone is having Excel, right? So here what I've done, I've created a basic table which is product, quantity, price, कुछ भी ले सकते हो. Now one more mistake students do, right? See, now here ये मेरा टेबल यहाँ पर है, so it is taking column value E4, F4. This table, if I'm cutting, किसी का टेबल यहाँ भी हो सकता है, तो what value they will take, उनका cell change हो जाएगा, right? Yeah, if they are taking it from your basic, I have just left the space, no problem. So I'll just keep it back. So here, if I am taking it, hold on. So don't mistake this mistake कि cell values common रहेगी. अगर journal में भी cell values different है, when you are doing it, your cell values will differ. Now we'll start with the first one, which is what if analysis. We'll do accordingly, means sequence wise we'll do. ऐसा वाला sequence नहीं, because इसके base पे ये आएगा, इसके base पे ये आएगा, इसके base पे ये आएगा. So we'll go ahead with goal seek. Now goal seek is something which is, I have told you that I want to achieve a target sale of, let's say 15,000. No, I'm just giving any random example. Let's say 15,000. ठीक है. So यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, देखो 3 options आ रहे हैं. When you open that particular option under goal से 3 options है. Set sell means आपको output कहाँ लाना है. So I have selected. Even if you have not selected, just click on this. अगर randomly देखो यहाँ select होगा तो it is taking my this cell value which is E1. So just delete it
and put your cursor only here and select your total value. Set cell, आपको output किधर लाना है, total value में, ठीक है. Now to value, how much I want to achieve the total sales. I have just given an example of 15,000 rupees. ठीक है. और फिर आपको चेंज क्या करना है. लेट्स से आपको क्वांटिटी आप नहीं, यू वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच प्रोडक्शन यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सो दैट इफ यू आर सेलिंग इट एट 45 rupees per kg, you will get a sales of 15,000 per week. Getting? So changing sales क्या होना है, मुझे क्वांटिटी चेक करना है कि कितना होगा. I'll show it with both. First understand with quantity. So I'm selecting what, by changing cells I'm selecting quantity. You need not write it. This is called as what, dancing lines. When you select some specific cell table, जब हम select करते हैं pivot table में भी again we are going to use it. So it takes the specific cell value which is F5. Your answer need not be F5. जरूरी नहीं तुम्हारा भी F5 होगा, जो तुम्हारा column value वो होगा, ठीक है. So I'll click on OK. Now look at the table and show this output. First मेरा table समझो. Now if I want to keep the price at 48 rupees only, how much production I have to do? I have to do the production of rice. कितना production करना पड़ेगा? 312.5 kgs of rice. Either I have to order it or either I have to produce it, so that if I am selling it at the price of 48 rupees, I can get the total target value as 15,000 rupees per week. Clear with this everyone? Yes? Okay, देखो यहाँ पर भी टारगेट वैल्यू, और हमने किधर पे गोल सीक का आंसर किधर आ रहा है हमें F7 में. तो ये दिख रहा है गोल सीकिंग विद F7 फाउंड अ सोल्यूशन और टारगेट वैल्यू इज 15,000 रुपीज. नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू चेंज द प्राइस. नाउ देखो, हाँ यहाँ पर देखो, अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूले से आया है, राइट. यू डू नॉट हैव टू ओपन कैलकुलेटर और 240 into 48 करोगे तो आएगा, ऐसा नहीं है. Now if I change value over here, let's say 100 करूंगी, एंटर करूंगी, तो रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ चेंज होनी चाहिए. वो फॉर्मूला से होता है. सिमिलरली जब रिजल्ट्स भी बनते हैं, राइट, तो फॉर्मूला लास्ट कॉलम में फॉर्मूला आता है कि C इंटू जी सी जी होगा, पॉइंटर इंटू दो पॉइंटर होगा, पॉइंटर के बाद अपना CGP आएगा या जो भी अपना आगे आगे क्रेडिट या पॉइंटर आता है. So formula, if I change again price to 55 rupees, it should give me 5,500. Now let's say again I'll do for group what if analysis, goal seek. Now I want the output here only. तो यहाँ पर मेरा F7 selected है, ठीक है. अगर नहीं selected है तो वापस जाओ, यहाँ पर इसको बैक स्पेस करो और इसको सिलेक्ट कर लो, तो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. गो बैक केयर. नाउ टू वैल्यू, लेट्स से अभी मुझे सेल्स चाहिए 22,000 का नेक्स्ट वीक, ठीक है. ऐसे रैंडमली 22,000, ठीक है. अब मुझे ना, मेरे पास आई हैव इट 100 क्वांटिटीज ऑफ राइस ओनली, बट आई वांट कि मुझे सेल्स चाहिए 22,000 का. सो व्हाट प्राइस आई नीड टू फिक्स, कि कितने प्राइस में मुझे आई नीड टू सेल इट सो दैट आई कैन गेट अ टोटल सेल्स ऑफ 22,000. सो आई जस्ट सिलेक्ट प्राइस. Earlier example I did it with quantity. This example I'm doing it with price. ठीक है. देखो अभी मैंने प्राइस को सिलेक्ट किया. ओके. Now see, if I want, obviously the calculation is simple because I have written 100 over here. Now let's say if I have 100 kgs of rice in my inventory, go down whatever it is. Now if I want to achieve a sales of 22,000, मुझे उसको प्राइस कितना देना पड़ेगा? I need to sell it at 220 rupees per kg. Then only I'll get a total sales of target value of 22,000. Clear with both the values? Yes, TY? So this was goal seeking the target, setting the target for future analysis. What will be the price? What will be the quantity and all. Now we are doing with just two properties of a table. हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज से काम कर रहे हैं, क्वांटिटी और प्राइस. जब हम लोग ग्रेसिंग भी देते, राइट, ग्रेसिंग का कितना नियरेस्ट वैल्यू, ऑर्डिनेंस एंड ऑल, दैट ऑल्सो वी अप्लाई द फॉर्मूला लाइक दिस. वी इन द सेंस जो रिजल्ट बनाते हैं वो. Now next one is data table. Now for data table, we need to do some changes over here. Like table कैसे होता है, देखो एक रो in terms of rows and columns, correct? Now instead of doing together in terms of rows and columns, मैं पहले separately सिखाऊंगी. पहले we'll do it for column, then we'll do it for row, and then together row and column that will contribute to form a table, which is data table. Now you will understand when we do it. Hold on.
लेट्स से एक कोई भी क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी लेते हैं या तो प्राइस लेते हैं, ठीक है। अब मैं कॉलम में लिखती हूँ क्वांटिटी, कॉलम समझता है ना सबको, कॉलम इन टर्म्स ऑफ केजी में, ठीक है ना। ये ब्लॉक छोड़ो और मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ। आज टुडे आई हैव 100 kgs ऑफ राइस, लेट्स से टुमारो आई हैव 8, टुमारो आई हैव 80, थर्सडे, फ्राइडे के पास, फ्राइडे मेरे पास 75 kgs ऑफ राइस आ रहा है, नेक्स्ट मेरे पास 99 kgs आ रहा है, देन मेरे पास 105, रैंडम वैल्यूज, ठीक है। कंपल्सरी नहीं, जो मैंने डाला है वो आप ही डालो, रैंडम वैल्यूज, जस्ट क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ टेबल। हियर आई एम ओनली लेट्स से 5 टेबल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मेरे पास 113 kgs ऑफ राइस आ रहा है, सो दिस इज द क्वांटिटी विच आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, दिख रहे कॉलम में लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इफ आई वांट, नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू। let's say I'll say this, if I'm selling rice at rupees 53 per kg, sorry, rice at 53 rupees per kg, 100 kg है मेरे पास, तो 5300 रुपीज आ रहे हैं मेरे पास। अगर 80 kgs है सेलिंग इट फॉर 50 रुपीज, कितना आएगा? 75 kgs एट 53 रुपीज में इफ आई एम सेलिंग इट, कितना आएगा? 99 kgs एंड सो ऑन। नाउ if you recall, here we are doing it only for one value, but in one shot, like in only one click, if I want for all these values, I've just written a random of 5 values, randomly 5 values. If you have, you can create a list, kitna itna hai Monday Tuesday 28 days ka 30 days ka 30 values you can have, but in one shot means separately itne alag alag table nahi calculate karne. So for that we will use what data table over here. So before we proceed to data table, again something to be done over here, pay attention. अब देखो, पर्पसली क्वांटिटी के नीचे मैंने यहाँ पर एक सेल लीव करी, वो लीव करना है, ठीक है। और उसके नीचे हमने कॉलम वाइज अलग अलग क्वांटिटी लिख दी अपन ने इन टर्म्स ऑफ केजी। नाउ इसके रिस्पेक्टिव 80 kgs अगर सेल करूँ 53 रुपीज में, इसका रिस्पेक्टिव टोटल अमाउंट यहाँ आना चाहिए, 75 का इधर, 99 का इधर, 105, 113 एंड सो ऑन। नाउ योर ना, व्हाट आई डू, आई पुट दिस total value based on my original table. Now understand, wait, I'll do it. Equal to लिखेंगे, I'll click on this because ये total value का column है, enter. If I click on this again, I'll do it. See, मैंने यहाँ पर क्या करना है, equal to डालो, सिलेक्ट करो इसको, जो भी आपका टोटल का कॉलम होगा ये वैल्यू का, इसको नहीं, इसको, फिर एंटर, यू विल गेट द टोटल वैल्यू हो योर जो ओरिजिनल टेबल से। नाउ बेस्ड ऑन दिस टेबल ना, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटा टेबल। अब ये क्या है, इफ आई एम हैविंग टुडे, लेट्स से टुडे इज वेडनेसडे, राइट, 100 kgs है, मैं 53 रुपीज में सेल कर रही हूँ, तो इतना अमाउंट आ रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, व्हाटएवर। सो व्हाट वी विल डू, डेटा टेबल में वी हैव टू सिलेक्ट दीज वैल्यूज एंड देन वी हैव टू गो टू व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल। नाउ व्हाइल सिलेक्टिंग, ना एक ज्यादा होना चाहिए ना एक कम, देखो एक रो कॉलम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक रो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो आउटपुट प्रॉपर नहीं देगा। तो जितनी वैल्यूज है ये ऑब्वियसली सिलेक्ट होगा क्योंकि इसके अपोजिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये ज्यादा ले लिए तो भी आउटपुट नहीं आएगा, ये ज्यादा ले लिए तो भी एरर है, इतना ही, क्योंकि इसका रिस्पेक्टिव आउटपुट इधर, इसका इधर, इसका इधर। नाउ व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई एम डूइंग इट वन एट अ टाइम। तो देखो डेटा टेबल में रो भी होता है, कॉलम भी होता है, दोनों एक साथ बाद में करेंगे नीचे, बट मैं सेपरेटली समझा रही। Now we have written quantity in terms of what? Columns, correct? So I'll come to column over here. This is just a hint so that you can relate. Because students forget कि यहाँ पर value क्या select करनी है, गलत select करोगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार emphasize कर रही हूँ, I'm repeating कि quantity I'm selected in terms of column. Column में लिखा है right? तो column input cell, यहाँ से हमको select करना है quantity जो हमने column में लिखी है 100 and just click on OK. You will get the respective values. Now see, again I'll explain this. If I'm selling 80 kgs of rice on Thursday at 53 rupees, if you calculate from your calculate, oh god, अभी ये क्या होता है ना, अरे यार this happened, ये हमेशा हर बार होगा मुझसे। See, by mistakenly I have clicked inside the value. Now वो जो फॉर्मूला अप्लाई हो गया था, राइट, एक मिनट, आप कुछ कर सकते क्या इसको, अब जो फॉर्मूला अप्लाई हो गया था ना, अब नाउ इट इज थिंकिंग एंड आई एम एडिटिंग द फॉर्मूला और फिर इट बिकम्स डिसेबल, इट विल नॉट अलाउ मी टू डू एनीथिंग। हो गया देखो, ओके, we'll have to work with a new worksheet. This is also means it happened, fortunately it happened in front of you all। क्या हो गया, अगर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते ना, अब देखो वो कुछ भी करने नहीं देगा, बिकॉज वो फॉर्मूले में व्हाट आई डिड,
मिस्टेकनली आई हैव क्लिक्ड ऑन टू दैट सेल, और वो सेल में आंसर्स क्या थे हमने मैन्युअली नहीं किए, वो फॉर्मूला से आंसर्स आया था राइट. अब उसको क्लिक कर दोगे तो इट डजंट अलाउ यू टू डू एनीथिंग. सी इट्स नॉट लेटिंग मी टू डू अंडू ऑल्सो. आई नीड टू क्लोज दिस. होल्ड ऑन. टास्क मैनेजर में से मैंने जाके दिन क्लोज करना है इसे. हो जाना बाबा. ये डेटा टेबल में होता है. क्लियर कंट्रोल और डिलीट. कहा गया. But I'll open one more instance of Office. कुछ भी वैल्यू लिख देती हूँ मैं. 45 रुपीज into this. Enter. ठीक है. We'll come back to our data table. Wait, I'll write it again. डेटा टेबल के लिए क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ केजीज. ठीक है. ये सेल लीव करना है. 40 कितना है मेरे पास. 120 केजीज है तो नेक्स्ट डे लेते 85 केजीज होगा. फिर 98 केजीज या 95 नहीं लेते 98 कुछ भी वैल्यू ले सकते. 105 केजीज, 113 केजीज, 125 केजीज whatever. सो हाउ आई डिड. इसके ऊपर जाके इक्वल टू लगाना है. ये इस पे प्रेस करना है. एंटर. आगे अपना जो मेन करंट डेटा का जो टोटल सेल्स है वो लिया हमने. देन आई सिलेक्ट दिस एंटायर टेबल. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब में वी हैव व्हाट इफ एनालिसिस. अगेन एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी इन थियोरी एज वेल. व्हाट इफ एनालिसिस इज अंडर विच डेटा टैब. इंसर्ट, होम, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा तो डेटा टैब में होता है. सॉरी इज इन विच टैब तो वो डेटा टैब में होता है. Coming to this column, say you have to come to column and then what we'll select column के लिए quantity and then okay. So see, I'll not repeat my mistake again. देखो यहाँ पर 85 rupees, sorry 85 kgs of rice. If I'm selling at 45 rupees, you'll get this output. Means this is the money total sales आएगा. 98 kgs अगर तुम 45 rupees में sell कर रहे हो तो ये amount आएगा. 105 kg है. ये kg है, rupees नहीं है. 45 रुपीज से सेल कर रहे हो तो ये आएगा. सिमिलरली 125 kgs ऑफ राइस है एंड इफ यू आर सेलिंग इट एट 45 रुपीज ओनली यू विल गेट दिस. ये समझ में आया. ये डेटा टेबल का सिर्फ एक कॉलम वैल्यू. नाउ आई विल डू इट फॉर लेट्स से एट एनी. आई विल डू इट फॉर प्राइस. नाउ हियर आई हैव रिटन क्वांटिटी इन कॉलम, सो आई एम राइटिंग इन प्राइस इन रो में लिख रही हूँ. यू कैन इन्वॉल्व लाइक यू कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो. क्वांटिटी को रो में लिख दो, प्राइस को. बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यू कैन डू इट. ठीक है. एक मिनट. नाउ क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, मैंने कैसे समझाई. ये लिख रहे हो, ये हेडिंग लिख रहे हो. हेडिंग लिखे उसके बाद एक सेल छोड़ना है. अब मैं रो में लिख रही हूँ राइट. तो हेडिंग लिखो. हेडिंग इन द सेंस कॉलम में एक सेल छोड़ दो. इसके आगे प्राइस लिखो. अभी 45 रुपीज है. लेट्स से टुमारो आई विल सेल इट फॉर 46 रुपीज या 48 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट टाइम 53 रुपीज. नेक्स्ट टाइम 57 रुपीज. नेक्स्ट टाइम 62 रुपीज. whatever it is, I'm just giving random values. एक और दे देते 65 35 रुपीज में. ठीक है 35 ही रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. फिर क्या करना होता है, ये छोड़े ना उसी के सामने आना है और क्या देना है इक्वल टू के बाद ये सिलेक्ट करके एंटर. बिकॉज दिस इज द बेसिक टेबल वी आर रिफरिंग टू. नाउ अगेन अब कॉन्सेप्ट क्या होगा. 125 kgs ऑफ राइस है. अब प्राइस चेंज कर रहे हो. देखो प्राइस 48 रुपीज, 53 रुपीज एंड सो ऑन. 120 kgs of rice today you are selling it for 45 rupees. इतना टोटल सेल आएगा. सिमिलरली व्हाट इफ
if you have 25 kgs of rice and tomorrow if you are selling it for 48 rupees per kg, what will be the total sales? 120 kgs of rice is at Thursday, Friday you are selling it for 53 rupees, what will be the total amount, total sales? Similarly, 120 kgs of rice to Sunday, if you are selling it for 35 rupees, then what will be the amount? So what we will do, selecting not more, not less, go to what if analysis data table. Now tell me what I'll select from here, either column or row. Tell me quickly, क्या select करना है फटाफट? Yes, TY, I'm asking you all, what do I select from the table value? Are you all sleeping? नहीं समझ रहे तुम लोग को? समझ रहे हैं। तो आंसर तो दो, क्या सिलेक्ट करूंगी मैं यहाँ पर? रो सिलेक्ट करूं कि कॉलम सिलेक्ट करूं? कॉलम। वाई कॉलम? कॉलम कॉलम तो मैंने ये ले चुकी हूँ, कॉलम में क्वांटिटी। अब मैं प्राइस रो में लिख रही हूँ, राइट? तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगी? रो सिलेक्ट करूंगी, और जब नेक्स्ट टाइम मैं टेबल बताऊंगी तो मैं दोनों सिलेक्ट करूंगी. सो आई जस्ट डिलीट इट. व्हाट आई सिलेक्ट? रो को सिलेक्ट करना है, और रो में मैं क्या डाली हूँ? मैंने रो में क्या डाला है? प्राइस डाला है, राइट? तो मैं प्राइस को सिलेक्ट करूंगी एंड आई क्लिक ऑन ओके. नाउ सी, क्यों प्राइस मेरा चेंज हो रहा है, राइट? 48 रुपीज 120 केजी 48 रुपीज. सी मैं कितना तो समझा रही हूँ इन डेप्थ कि 120 केजीज ऑफ राइस अगर मैं 45 रुपीज में सेल करूँ तो इतना टोटल अमाउंट आएगा. सिमिलरली फ्राइडे को अगर मैं 48 रुपीज, आई एम इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ राइस, तो मुझे ये टोटल सेल आएगा. आ रहा है इससे ज्यादा क्योंकि मैंने प्राइस 3 रुपीज बढ़ा दिया है, तो सेल बढ़ गया 53 रुपीज, तो मुझे 6000 अराउंड आएगा. 35 रुपीज कर दूं तो मुझे सबसे कम अमाउंट आएगा 48 रुपीज. So this is in terms of column, this is in terms of row. Let's do it together. मैंने पर्पसली अलग अलग कराया ताकि समझ में आए, क्योंकि फिर वो एक साथ कराएंगे तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. नाउ देखो, हम लोग क्वांटिटी को भी लिखते हैं, प्राइस को भी लिखते हैं. क्वांटिटी आई कीप द सेम एज इट. मैं कॉलम में लिखती हूँ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ केजी. अंडरस्टैंड फॉर दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी. बस ध्यान देना है तुम लोग को. क्वांटिटी लेट्स से रैंडमली अभी मैं यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी लिख देती हूँ, ठीक है? 85 केजीज 98 केजी जो हमने ले चुके वो नहीं लेते. जो लेना है वो लो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं. 101 केजीज 108 केजीज 5 वैल्यू ले लेते, 4 हो गई. और 115 केजीज. ये कैसे लिखने मैंने समझाया, एक सेल छोड़ देना है, ठीक है? अब इसके ऊपर जाओ, यहाँ लिखो प्राइस. ओ सॉरी, मैंने एक क्वांटिटी ऐसा लिख दी. एक मिनट, इसको मैं कट करती हूँ, कट, और यहाँ लिखती हूँ पेस्ट. अरे यार, अच्छा ठीक है ना, एक मिनट. हाँ, टेस्ट स्पेशल आई नहीं रहे. इसका ऑप्शन है, अभी जाने दो. उतना ऑप्शन में मेरा टाइम सेशन भी खत्म हो जाएगा. है वो कुछ, अभी इतने इंस्टेंस में मुझे वो क्लिक भी नहीं हो रहा है. लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग कितने केजी से. लेट्स से 98 केजी से, 102 केजीज है, फिर मेरे पास 80 केजीज आई, फिर मेरे पास 65 केजीज आई, और लेट्स से 50 तक नहीं जाते, 115 केजीज आई. ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख दी, चलेगा, कोई ऐसे लीनियर ऑर्डर में नहीं लिखा है. ये मेरा क्वांटिटी जैसे हमने लिखे थे, यहाँ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ रो, कॉलम मैंने कॉलम में लिखा है. एक सेल लीव करने के बाद अब मुझे प्राइस लिखना है, तो मुझे प्राइस लिखूंगी और एक सेल लीव करूंगी. देखो प्राइस, आई राइट प्राइस स्लैश इन टर्म्स ऑफ रुपीज. अब यहाँ मैं प्राइस लिखूंगी. लेट्स से टुडे आई एम सेलिंग इट फॉर 25 रुपीज, नेक्स्ट आई एम सेलिंग इट फॉर 32 रुपीज, देन 40 रुपीज, लेट्स से फॉर 38 रुपीज. 5 लेना है ताकि इंटेंस प्रॉपर टेबल बने, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का. एंड देन आई एम सेलिंग इट फॉर 45 रुपीज. 45 नहीं रखते, हमारे पास ऑलरेडी है, 43 रख देते. ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हमने किए थे, देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये इसके आगे ये कॉलम छोड़ना है, उसके वैल्यूज क्वांटिटी प्राइस हमने रो में रखे. देखो अगेन आई एम सेइंग इट,
बिकॉज यू पीपल वर नॉट एबल टू आंसर. क्वांटिटी मैंने रो कॉलम में रखा है, प्राइस मैंने रो में रखा है. इसका रिस्पेक्टिव आउटपुट देखो कैसा आएगा. इफ आई टुडे इफ आई एम देखो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है. मंडे में इफ आई एम हैविंग 98 केजीज ऑफ राइस, और अगर मंडे को मैं सेल कर रही हूँ उसको 25 रुपीज में, व्हाट विल बी माई टोटल. सिमिलरली अगर 98 केजीज ऑफ राइस अगर मैं 32 रुपीज में सेल कर रही हूँ तो कितना अमाउंट आएगा. 98 केजीज ऑफ राइस 40 रुपीज में कर रही हूँ तो कितना सेल आएगा, यहाँ पर आएगा. सिमिलरली 65 केजीज ऑफ राइस है, 40 रुपीज में सेल कर रही हूँ तो कितना अमाउंट आएगा. सिमिलरली 115 केजीज ऑफ राइस है, 43 रुपीज में सेल कर रही हूँ तो कितना आएगा. ठीक है ना. जैसे ये लाते यहाँ पर रखना है इक्वल टू, ये वैल्यू सिलेक्ट करना है, एंटर. ठीक है. अब इसको सिलेक्ट करना है, वो क्वांटिटी और ये सबको नहीं लेना है. क्वांटिटी तो हमने टेक्स्ट लिखे, राइट. फिगर्स को लेना होता है. फिगर्स को लेने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, अब दोनों यूज करेंगे. अब बताओ कॉलम में क्या लेंगे फटाफट. कॉलम में कॉलम, यस. इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू स्पीक अप, या बहुत थक गए हो तुम लोग सारे लेक्चर्स अटेंड करके कि आवाज ही नहीं निकल रही है. कॉलम में हम लेंगे क्वांटिटी. सो ये फ्रॉम योर आई सिलेक्ट क्वांटिटी, अमाउंट सिलेक्ट करना है, ये नहीं करना है. ठीक है, ये सिलेक्ट करना है. मैंने ले लिया F4. अब रो में मैंने जिस हिसाब से, अगर आपने स्वैप की, अगर आपने इधर पे क्वांटिटी लिखी इधर प्राइस लिखी तो वैसे लोगे. अब रो में हम क्या लेंगे, प्राइस. आ गया दोनों. क्लिक ऑन ओके, आ गया आपका आंसर इन वन क्लिक. इन वन क्लिक मीन्स अब मल्टीप्लाई कर लो, किसी के पास कैलकुलेटर होगा. 98 केजीज ऑफ राइस अगर आप 25 रुपीज में सेल करोगे तो इतना टोटल सेल आएगा. 65 केजीज ऑफ राइस अगर 38 रुपीज में सेल करोगे तो इतना आएगा. सो दिस इज आवर एंटायर डेटा टेबल. दिस इज आवर एंटायर डेटा टेबल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. डिफरेंट के जितनी केजीज होगी उसके हिसाब से वो इतना, जितनी केजीज होगी उतना अमाउंट होगा, वो टोटल वैल्यू. जितना केजीज है उस जितना अमाउंट है वो टोटल वैल्यू. क्लियर विद दिस एवरीवन? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड, बेटर नाउ. ये हो गया अपना मेन टेबल. फिर इसी के अंदर हमने गोल सीख किए थे कि टोटल अपने को टारगेट चाहिए 10,000 12,000 15,000 22,000. ये अपना डेटा टेबल का हाफ हाफ हो गया. हाफ हाफ इन द सेंस, इसके लिए पर्पस थी, देखो ये डायरेक्टली मैं ये बता सकती थी, बट कॉन्सेप्ट क्या होता है ना स्टूडेंट्स. अब देखो इसका आंसर कभी जीरो भी आ सकता है. अब देखो यहाँ पर अगर मैं चेंज करती हूँ तो यहाँ पर भी चेंज होगा, बिकॉज दिस डेटा एंटायरली इज बेस्ड ऑन ये टेबल, क्योंकि अपन इधर से सेल सिलेक्ट करेंगे, राइट. अभी यहाँ चेंज कर देते हैं. लेट्स से 113 केजीज. देखो ये चेंज हुआ 508 5085 5085 5085. ठीक है. अभी यहाँ पर मैं प्राइस चेंज कर देती हूँ. 55 नहीं 55 रुपीज चेंज हो रहा है. 6215 6215 6215. ये टेबल इनकी वैल्यू से, अगर देखो मैं यहाँ चेंज करूँ 63, ये कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेंज होना चाहिए. 63 हुई, सारी वैल्यूज चेंज हो गई. अगर ध्यान दियोगे आप लोग ने, पूरा रो चेंज हो गया. सॉरी 63 केजीज हो गया. लेट्स से मैंने मंगाई थी 115 केजीज, मुझे सिर्फ 102 केजीज आया, या डिलीवरी मुझे सिर्फ 103 केजीज की हुई. सो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी. चेंज हो गया. सो दिस इज डेटा टेबल. नाउ द लास्ट वन विच इज रिमेनिंग इज विल बी डिसकनेक्टेड इन सेकेंड्स. यार लास्ट ही बचा था. ठीक है. I'll quickly end the session. You all join so that we can do the last part, which is scenario manager. वो एक ही स्टेप का है. फटाफट से ज्वाइन करो.
Okay, coming to the last part, which is data tab में से what if analysis में scenario manager. Now during giving, like during the introduction part, I have told you that scenario manager as if I want to keep the record of Monday sale, Tuesday sales, Thursday sale, so I can keep it with the help of, I can do it with the help of scenario. I can do it with the help of scenario manager. Now look here, what I have to do, देखो मैं इस पे क्लिक करती हूँ, scenario manager. There are no scenarios defined here. Let's say मैंने अभी तक कुछ स्टोर नहीं किया. Now if I want to keep the scenario, what I have to do, I have to add it. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपली क्लिक ऑन ऐड करूँगी. Now सिनेरियो मैनेजर का नाम पूछ रहा है. Now let's say I'll give talk about like Monday sales, Tuesday sale, या week 1, week 2, week 3, week 4, या मंथ के हिसाब से सेल्स करना है तो यू कैन से मंथ 1 जनवरी सेल, February till December. I am doing day wise sales, so I'll write what Monday sales. So I'll write Monday sales, Monday का sales. Not changing sale. Now let's say ये आज का सेल है, मैं ये जब से यही बता रही हूँ राइट, ये मंडे का है तो ये ट्यूसडे, ये थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, व्हाटएवर. तो लेट्स से दिस इज टुडे सेल व्हिच इज मंडे. नाउ इसके लिए वो बोल रहे हैं चेंजिंग सेल्स. Now for Monday sale, what is the amount and what is the quantity? I have 113 kgs of rice and I'm selling it off of 655 rupees and I'm getting a total sales or target value at 6,215 rupees. So let's say I want to save it for future. Let's say I'm into June month right now और मुझे देखना है कि February के 10th March को क्या डे सेल्स हुआ था या फर्स्ट मंडे को क्या सेल्स हुआ था. तो I can use it, like I can save it for future analysis. So changing cell में what I'll do, I have to select it. देखो both things I have to select. ये दोनों ठीक है, क्या दोनों, क्वांटिटी भी प्राइस भी, दोनों एक ही नहीं सिलेक्ट करना, आपको दोनों सिलेक्ट करना इन द सेंस कि आपकी कितनी क्वांटिटी कितना प्राइस था. ठीक है, गो बैक, selected my F4 and F5 if you can see over here, and then prevent changes. I'll explain what is this prevent changes and then click on OK. Now it is just giving you a confirmation क्या इसमें 113 वैल्यू और इसमें 655 वैल्यू है. ओके, से यस. ओके, तो ये सेल आपका सेव कर दिया है. सिमिलरली फॉर टुमारो, लेट्स से मेरा ये कल का टेबल है या ये मेरा कल का टेबल है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन क्रिएट अ सिनेरियो मैनेजर फॉर ट्यूसडे सेल, वेडनेसडे, थर्सडे, हैविंग कितनी क्वांटिटी है मेरी, कितने प्राइस पे मैंने बेची, तो इट विल सेव इट फॉर फ्यूचर एनालिसिस. Now what happened, let's say someone is deleting the by mistakenly I am losing my data or someone has deleted my data. What will happen, I want to get my exact value के, देखो अभी क्या आ गया 4135, मेरा कुछ और था राइट. Now I want to get my value back, sorry, I want to get my value back. देखो किसी ने चेंज कर दिया या डिलीट हो गया या डेटा में कुछ I mean some integrity of the data is lost. So if I want to get my data back, what I'll do, what if analysis, since I have saved it into scenario manager, सिर्फ उसको select करो, अभी जितने भी scenarios create करोगे उसमें से सिर्फ show कर दो. So you will get back your original data, whatever it was, that on Monday or on date 10th March, जैसे भी आपको बनाना है, नाम लिखो. I have just written Monday, you can also write 10th March, 11th March, 12th March, whatever, and then you can figure out that कितना kgs आपको मिला था 113 and you have sold it for 55 rupees and your total sale was 6215. So that is only about scenario manager. So while explanation it took long, but when you do it, since like if you have understood it, I assume when you do it, it will hardly take 10 minutes to perform the practical. ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, अगर मैं यहाँ डबल क्लिक कर दूं तो वो फॉर्मूला में इंटरप्शन हो जाता है.
So again I have to go back, create this table as well. So I did current. Similarly अगर यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा, फॉर्मूला टेबल में मीन्स इट थिंग्स कि हम एडिट करें फॉर्मूला तो जनरेट हो गए. सो इट गिव्स अस एरर इन द सेंस वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन द this thing Excel sheet. So this is about what if analysis. Some like in manual they've given about book. I have here given about any product which is in terms of quantity and price. Hope you all have understood. Yes. Yes, ma'am. Okay. I'll share the screenshot on group. If you want, you can have an access to this. अभी टीवाई में किसका लेक्चर है? किसी का नहीं. किसी का नहीं. कितना टाइम हो गया? 56. एक सेकेंड पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजने दो. कहाँ है यार टीवाई का ग्रुप? Wait, I'll just check out who is having another lecture in SY. Otherwise, I'll continue with you all. कहाँ गया? अरे यार ये कितना लेक्चर उसका? 12 बजे इसका, मेरा 1 बजे, 12 बजे. Okay. Okay, this is a similar kind of program. We'll continue with, at least we'll just require 10 minutes for this program because देखो 4-5 लाइन का ये. Next one is prediction using linear regression. Now linear regression you must have done in NSM semester 2. Now mathematical formula linear regression क्या क्या होता है? Y is like देखो यहाँ पर लिखा है मेरे, I have written the note also. Y is equal to ax plus b is an equation for linear regression. Now let's look at the theory part and then we'll go to the program in R tool. Now in linear regression there are two variables. एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. सो टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड थ्रू एन इक्वेशन वेयर एक्सपोनेंट पावर ऑफ बोथ दिस वेरिएबल इज 1.
मीन्स एक्सपोनेंट पावर दिख रहा है, ये a raised to 1 है, that is why we don't write b raised to 1 और x raised to 1 है. Sorry, I'm so sorry, a and b are this thing constants, but जो ये दिख रहे हैं x और y, x is, एक मिनट, x is dependent variable and y is independent variable, or you can also say y is a response variable, x is a predictor variable. Let's say I am changing the value of x value 1 है, तो accordingly x की value जब 1 होगी तो y की value change हो जाएगी. Similarly x की value 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो वैसे ही y की value change होती जाएगी. तो x कैसे respond करता है according to the value of y, sorry, y कैसे respond करता है according to the value of x. I'll repeat again. y कैसे रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x. जैसे हम लोग x की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, x की वैल्यू होगी 1 2 3 4, वैसे ही अकॉर्डिंगली y का आउटपुट आएगा या आउटकम आएगा. गेटिंग? Mathematically, a linear relationship represents a straight line when plotted as a graph. नीचे हम लोग ग्राफ देखेंगे तो उसमें linear regression का जो ग्राफ आता है मोस्टली वो straight line में होता है. Non-linear relationship where the exponent of any variable is not equal to 1 creates a curve. यहाँ पर जितने अपने a और b कांस्टेंट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, x और y जो वेरिएबल है ना, उनका एक्सपोनेंट इन द सेंस पावर 1 है. दैट इज व्हाई इन लीनियर रिग्रेशन वी गेट अ ग्राफ में लाइन, स्ट्रेट लाइन. बट जो नॉन लीनियर रिग्रेशन होते हैं उनका क्या होगा, x raised to 2 y cube y 4 पावर रहेगा विच इज नॉट इक्वल टू 1. दैट इज व्हाई इन दैट वी गेट अ कर्व, वी डोंट गेट अ लाइन. सो लीनियर रिग्रेशन, इसका नाम ही लिखा है लीनियर मतलब लाइन. Getting? So why am I explaining this? Because I'll be expecting these answers in the practical exam viva. So y is the response variable, x is the predictor variable, a and b are constants which are also called as coefficient. ये coefficient है ना, coefficient हम लोग ने maths में पढ़ चुके. Now looking forward to the program. Now predict the weight of a new person. Weight बोलो, height बोलो, whatever it is. ठीक है? Wait, I'll explain first and then we'll proceed. X is equal to, let's say मैं कोई भी, like number of students we have in the class, let's say we are doing what, measuring the height and weight of the student. So जो ऊपर लिखा है वो height in terms of centimeters और जो नीचे लिखा है वो obviously weight है. ये weight नहीं हो सकता, right? ये weight है 63 kgs, 81 kgs and so on. Randomly you can write, but number of values to match. अगर यहाँ 10 का डेटा है तो नीचे भी 10 होना चाहिए, 9 आएगा तो आउटपुट रॉन्ग होगा. इतना सबको समझा? What we have done in X is similarly you can swap also. So in X I have taken the number of students के height in centimeters and Y I have taken क्या नाम है, weight in kgs. ठीक है? Now I'll explain this also. Now what we are doing, ये देखो ये variable होता है. X में अपन ने लिखे height, Y में लिखे अपन ने weight. Now I'm creating another variable जिसका नाम है relation. And I am applying LM. LM is nothing but a short form or a function which is called as what? Linear model. So linear model, it is used to create a simple regression model. जैसे हमारे models होते हैं, waterfall model and all those models. Similarly in our tool we have a model which is called as linear model under linear regression. So वो function का नाम by default है LM और उसके आगे you can see कि parenthesis लगी है. Parenthesis मतलब circular bracket. So it is by default a function which is receiving a parameter. I'll explain that parameter. So I'm talking about LM right now. LM is linear model. It is used to create a simple regression model. It accepts a number of argument as in x or y या y x जो भी आपने store किया ना, height और weight of the student. So it accepts the parameter which is x. It is accepting the parameter which is y and x or x or y. So understand this. पहले right hand side समझते. It is creating a linear model or a linear calculation will be done between the height of the student and the weight of the student. So what we are doing over here, y इस format में लिखते हैं हम लोग, y we can say tilt sin x. ठीक है? अब ये जितना भी आउटपुट उसने जो लीनियर मॉडल अप्लाई किया, जो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है R2 में, वो अप्लाई करने के बाद वी आर स्टोरिंग इनटू द वेरिएबल रिलेशन. ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा डॉट फ्रेम. नाउ इन डेटा डॉट फ्रेम आई एम अज्यूमिंग, देखो यहाँ पर ने क्या लिखा है, प्रिडिक्ट द वेट ऑफ अ पर्सन. बेस्ड ऑन सम रैंडम वैल्यूज ना, अब मैं क्या लिख रही हूँ, x की वैल्यू 170 लिख रही हूँ. नाउ आई से दैट स्टूडेंट नंबर 11 इज कमिंग, उसका हाइट 170 सेंटीमीटर्स है. तो अब मैं प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ कि उसका वेट कितना हो सकता है ऑन एन एवरेज. गेटिंग? सो व्हाट आर वी प्रिडिक्टिंग, x. देखो यहाँ पर x अपन ने क्या लिखे थे,
what we have written x, we have written x in terms of height. So I am predicting कि जिसकी height 170 होगी उसका weight कितना आएगा. So what I am doing, I am using one function which is data dot frame and वो predict करेगा weight of a person and then I'll store into variable a. And then finally देखो यहाँ पर we'll apply the function which is called as predict. किस कैसे करेगा रिलेशन विच इज क्रिएटेड द लीनियर मॉडल कॉमा ए, क्योंकि हम लोग को किसका परफॉर्म करना है, एक्स की वैल्यू विच इज 170 मीन्स द पर्सन द स्टूडेंट हुज हाइट इज 170. आई हैव स्टोर्ड द एंटायर डेटा इनटू ए. सो हाउ वी हैव टू पास दीज टू वेरिएबल्स, that is रिलेशन कॉमा ए. जैसे हम लोग लिखते हैं सी और बी, तो बी कॉमा सी, सिमिलरली रिलेशन कॉमा ए. एंड देन फाइनल आंसर इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट रिजल्ट. नाउ प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट करते हैं, राइट. वी हैव डन इन दिस इन क्लासिफिकेशन एज वेल. देखो यहाँ पर हम लोग ने लिखे कितना आया प्रेडिक्शन, उसने लीनियर मॉडल अप्लाई करने के बाद जिसकी हाइट होगी 170 सेंटीमीटर्स, उसका लाइक अप्रोक्सीमेटली वेट कितना होगा, 76.228 या 76.22 इन टर्म्स ऑफ केजी. हाँ, अभी एक और लाइन बची है, देखो प्लॉट. अभी सेम थिंग प्लॉट और पीएनजी हम लोग ने डेटा इन्फॉर्म में एस वाई स्टूडेंट्स, अदरवाइज दे मिस आउट. होल्ड ऑन. ओके, सो पीसी ना, अभी हम लोग को प्लॉट करना है, ठीक है. नाउ फॉर प्लॉटिंग वी यूज अ फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज प्लॉट. नाउ वी विल राइट दिस स्लाइड फॉर प्लॉटिंग. अभी अगर जो आंसर आ रहा है, जो ग्राफ आता है, राइट, अगर हमको उसको सेव करना है, रिमेंबर वी हैव सेव्ड इट इन रेनफॉल वाला प्रैक्टिकल ऑल्सो. तो कैसे सेव करते हैं, पीएनजी फाइल इज इक्वल टू लीनियर डॉट पीएनजी. सो विल डू इट एंड देन विल सी द आउटपुट. So first I'll create x variable. x में randomly I'll see is a function और हम लोग values ले लेते क्या, height, क्या ले रहे हैं हम लोग, weight नहीं sorry height, ठीक है. So I'll take height randomly. I'll take 170, 150 centimeters, 145, 156. Randomly I'm typing any values. 2 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8, ठीक है. I'm putting only 8 values. If you can check out 1 2 3 4 5 6 7 8. Similarly corresponding values of weight लिखना है in y variable. So हम weight लिख रहे हैं y में in with the help of c function. c कुछ भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है वो. तो मैं weight लिखती हूँ ऐसे randomly 50 kgs, 56 kgs, 45 kgs, 75 kgs. उसको भी 80 होना चाहिए, जितना हाइट है उतना ही वेट होना चाहिए. 4 हो गए, 5 6 7 एंड देन 8 8, ठीक है. सॉरी 7. Now what I'll do, I'll create a relationship between them. So I'll create a relation variable equal to LM क्या है, लीनियर मॉडल है, जो लीनियर, इट जनरेट्स अ रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द this thing. Done with this, it has created a linear model and it has stored into the variable relation. Now what I'll do, I'll print the relation. So I'll write print
now see, it has created a relationship kind of formula use किया उसने जो भी मैंने formula लिखी थी उधर, and it is predicting me the value, like average value is around 46.42 something kgs. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, hold on, will print, एक सेकंड, इसके ऊपर क्या था, हाँ, we have to use this predict variable and we have to store it into the data frame as well. So we'll store it into data frame and then we'll predict it. कोई भी वेरिएबल लिखो यहाँ पर, a is equal to data dot frame, एक सेकंड, dot frame, and then a is equal to data dot frame, and then I'll write x is equal to, let's say I'll predict it for 175 कि जिसकी हाइट होगी 175 उसका क्या आउटकम आएगा, a is equal to data dot frame, x is equal to 175. Done. Then I'll store it into again result variable. ऊपर वाला variable था relation. I am storing into result variable, and then I am predicting the outcome. PRIDICT. Predict again is a function. देखो function है, उसके अंदर हम लोग क्या parameters पास करेंगे, relation और अपना a. So relation comma a. Result relation की spelling तो mistake नहीं है. So here I am storing one value which is predicting function I am using. It will predict the relation value and the a value which I have stored. A में मैंने 175 height of a student post किया, and then in relation I am keeping the value of the linear model which is calculating the linear model and storing into the relation जो यहाँ दिख रहे हैं. Now after predicting it and storing into the result, now I am printing the result. Print result. Now it is giving me the outcome that a student who's having 175 as the height in centimeter, उसका outcome predict कर रहा है in terms of weight, that it is what 57.80 kgs. इतना समझा. अब इसके बाद अगर हमको प्लॉट करना है, ठीक है, तो पहले हम लोग प्लॉट का देखते हैं, then we'll see what PNG also. So first we'll plot it. So plot के लिए we have to write के कौन सी x axis है, y axis है, and all that. So x y के अपना weight है, comma x height है. Then what we have to do, देखो x और y we write, then उसके बाद हम लोग लिखते हैं, एक सेकेंड, oh sorry, column color is equal to whatever you want, you will give it. So I'll write it PLUE blue. एक मिनट, y पे हाइट
I'll explain this slide. First, let me write it. Plot x y blue main is equal to height weight. उसके बाद y लेबल, y लेबल के लिए हम लिखते हैं y लैब. y लेबल में क्या आना चाहिए? y में क्या अपना हाइट है. हाइट में अपना, एक सेकंड में इसको आउटपुट आने के बाद करेक्ट करती हूँ. वेट आई चेक, कुछ मिस्टेक है, इसके लिए वो आउटपुट है यहाँ पे. प्लॉट y कॉमा x कॉल इज इक्वल टू ब्लू कलर मेन इज इक्वल टू हाइट और वेट डबल कोट्स में आ गया. एब्सोल्यूट लाइन विच इज एडिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एल एम y कॉमा x मैंने लिखा है कॉमा. अच्छा देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज नहीं, डबल ब्रैकेट. सी ई एक्स मैंने अपनी वैल्यू दिया है, पी सी एच मैंने अपनी वैल्यू दी, कुछ भी दे सकते हैं. एक्स लैब डबल कोट्स है, वाई लैब. ओके यहाँ भी मिस्टेक है. एक्स लैब, लैब मतलब गूगल हो गया, वाई लैब हो गया. डन. एक आया बराबर. हाइट इन केजीज एक्स में है और क्या है अपना वेट में सेंटीमीटर्स. करेक्ट है, अभी सही है. सी नाउ दिस इज द ग्राफ, यू कैन सी लीनियर मॉडल जनरेट कर रहे हैं, लाइन. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, लाइन जनरेट कर रहे हैं. दीज आर द वैल्यूज कि अगर किसी का हाइट, देखो ये डायग्राम समझो, आई मीन ग्राफ समझो, फिर मैं ये लास्ट लाइन भी समझाती हूँ. ठीक है, अगर कितना है ये 40 to 50 के बीच में, लेट्स से 42 है तो किसी का 42 kg है तो उसकी हाइट 120 है. सिमिलरली अगर ये लेट्स से 58 kg है तो उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है. सिमिलरली अगर उसका 80 kg है तो उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर है. ग्राफ तो यही है. ठीक है, और वो लीनियर मॉडल जनरेट कर रहे हैं. नाउ अंडरस्टैंड द लास्ट लाइन, प्लॉट वाला, विच इज इंपॉर्टेंट. अगर उसमें जरा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो वी गेट एन एरर. आई विल एक्सप्लेन इट फ्रॉम योर, आई होप इट इज विजिबल. प्लॉट फॉरवर्ड यूज करें
y और x जो भी कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, मैंने x y y x लिखो. कलर इज इक्वल टू ब्लू, ब्लू कलर आ रहा है, जो कलर लिखना है आपको वो कलर लिखो. मेन मेन मतलब हेडिंग पे अपन ने क्या लिखी, हेडिंग लिखी है ग्राफ का नाम जैसे, तो मेन में मैंने क्या लिखा है, हाइट एंड वेट रिग्रेशन. तो देखो वैसे ही प्रिंट करके आ रहा है. राइट योर नेम, राइट वॉट एवर ग्राफ यू आर प्लॉटिंग इट, वो मेन में लिखना होता है. ए बी लाइन क्या करता है, देयर इन वी हैव टू गिव द लीनियर मॉडल फॉर्मूला. एल एम, एक मिनट, हाँ, ए बी लाइन इट इज यूज टू एड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिग्रेशन और लाइन्स ऑन टू द ग्राफ. ठीक है, तो ए बी लाइन अगेन एक फंक्शन है जिसमें हम लोग लीनियर मॉडल का फंक्शन टाइप करते. उसके बाद सीई एक्स एंड पीसीएच वी हैव ऑलरेडी डन. सीई एक्स में वो देखो मैंने 4 दिया तो वो उतना बड़ा दिखा रहा है, 1 दूंगी तो उतना छोटा बताएगा. पीसीएच का डिजाइन कैसे, उसकी रेक्टेंगल आएगा, डॉट आएगा, ट्राइंगल आएगा और रोम्बस आएगा. सो इफ आई चेंज द वैल्यू विल गेट द रिस्पेक्टिव सिंबल चेंज हो जाएगा. पीसीएच सिंबल होता है और सीएक्स साइज होता है. अब एक्स लेवल पे मैंने जो प्रिंट किया, मेरा एक्स क्या था, मेरा एक्स क्या था, हाइट था, राइट. तो देखो हाइट आ रहा है, एक्स पे मेरा हाइट आ रहा है, नहीं गड़बड़ आ रही है ना, एक मिनट. हाइट मेरा क्या था एक्स पे, एक्स पे मेरा वेट था, सॉरी हाइट थी. यहाँ पर क्या आ रही है, हाइट आ रही है बट वैल्यू रॉन्ग ले रहा है. एक मिनट, वही मुझे कुछ इधर पे लगा इसके लिए मैंने यहाँ चेंज की, इसको मुझे चेंज करने दो. y इज टेंस टू x. अभी आया बराबर, आया. नाउ सी, मैंने x में लिखा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम. x पे मैंने क्या ली थी, हाइट ली थी. y पे मैंने ली थी वेट. ठीक है, x पे आ गया मेरा हाइट, y पे आ गया. अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ चेंज की. देखो मुझे वैसे ही रखना है, x पे पहले मुझे प्रिंट करना है, फिर y प्रिंट करना है. x पे मेरी हाइट है, y पे मेरी वेट है. सिमिलरली यही जो मॉडल हम लोग ने ऊपर प्रिडिक्ट किए थे मैंने वही लिखी. ठीक है, दैट मीन्स इट विल शो x विथ रिस्पेक्ट टू y. x पे अपना हाइट है, अगेन आई एम टेलिंग y पे वेट है. अगर आप इंटरचेंज करो तो इसके हिसाब से जैसे प्लॉट करना है वैसे प्लॉट करो. And this is the output. If you change the value of PCHS, if you change the value of CX, you will get different value. Let's check that also quickly. I'll do it. देखो ये 1.2 दूंगी तो इससे और छोटा फिगर आ जाएगा, या 1.6 देते बड़ा फिगर आएगा. पीसीएच की वैल्यू 22 दे देते कोई और फिगर आएगा. दिखाई दे रहा है, कोई और फिगर आया. दैट इज द सिंपल एंड द साइज एंड दिस इज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सॉरी, क्लियर एवरीवन? एक मिनट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ये पूरा हुआ नहीं है, पीएनजी बचा है, राइट. मैं इस पे दे देती हूँ तुम लोगों को चैट बॉक्स में इसका पूरा कोडिंग. अलग अलग आ गया है क्योंकि मेरा पूरा अलग अलग हो गया था, राइट. और रिजल्ट हुआ प्रिंट. सोहेल एक साथ कॉपी कर लो और फिर शेयर कर देना. ठीक है ना, इसको तो हम लोगों ने या अल्लाह, तुम लोगों की वजह से मेरा आधा घंटा चला गया इस बार. चलो इसको कंप्लीट करेंगे यही पूरा. वेट, इसकी पिक्चर लेके मैं भेजती हूँ ग्रुप पे. So that those who have art tool can perform the practical at least. अभी PNG में सेव करना है, राइट. अभी ये कुछ गड़बड़ हो गया. PNG कैसे सेव करते, फाइल इज इक्वल टू, नाम लिख लो, क्या लिखना है, लीनियर, लेट्स से लीनियर लिखना है, डॉट PNG, सॉरी PNG
डबल कोट्स में लिखना होता है, हाँ ना, ठीक है। फिर अभी सर्च करोगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, वो डिवाइस डॉट ऑफ लिखना ज़रूरी होती है। लीनियर सेव करो उसको, डिवाइस डॉट ऑफ ब्रैकेट एंटर। ये पिछली बार भी हुआ था, 1 मिनट। इसका है ना कुछ तो है ऐसा लॉजिक जो है ना कभी कभार आता नहीं है, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा देखो, नॉर्मली जब हम लोग सेपरेटली करते हैं, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ आया है वो आपके सिस्टम में सेव होगा। नाउ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, जब हम लोग नॉर्मली जब पीएनजी फाइल को सेव करते हैं ना, और उसको मीन सेव करने के बाद एक्सेस करते हैं, तो वो फाइल तो सेव होती है बट वो दिखाता नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू इट, मैंने वापस से क्या की, पीएनजी फाइल में सेव की, उसको प्लॉट की, प्लॉट करने के बाद जब मैंने ओपन की तो आ रहा है। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? सी नॉर्मली जब हम उसको पीएनजी फाइल में स्टोर करते हैं और उसको सेव करते हैं डिवाइस डॉट ऑफ से, तो वो नहीं बताते, मीन्स इमेज आती है बट उसके अंदर का ग्राफ नहीं आता है, प्लॉटिंग नहीं होती। सो मैंने क्या की, नॉर्मली प्रोग्राम में ऐसे ही लिखा है, जर्नल वगैरह में भी, कि प्लॉट सॉरी पहले पीएनजी लिखा है, फिर प्लॉट लिखा है, फिर डिवाइस पर। मैं सेपरेटली करती हूँ, जब सेपरेटली करती हूँ तो वो सेव हो जाती है इमेज, यहाँ पर आता है उसका नाम बट विजिबल नहीं होती। सो मीन्स अंदर का कंटेंट या ग्राफ नहीं दिखता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले उसको पीएनजी में सेव कर लो, प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद ही वो अपने सिस्टम पे दिखाई देगा। क्लियर? सो दिस इज लीनियर रिग्रेशन। गो थ्रू द कोडिंग, थोड़ा सा कोडिंग में है ज्यादा बट 4-5 लाइन की हार्डली कोडिंग है, ठीक है। सो विल वाइंड अप हियर। So next, if I'm visiting college, the practical we were getting ना MDX का query जो नहीं आ रहा था, I'll try whenever I'm going to college in this week ना, मैं कॉलेज से लेक्चर लूंगी, बिकॉज इन द स्टाफ रूम के भी पीसी में मेरे पास एडवेंचर वर्क्स चल रहा है, आई ट्राइड इट आउट लास्ट वीक। और लैब के पीसी पे भी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही थी, राइट, वो रीस्टोर नहीं कर रहा था। सो कभी भी होगा ना, हाफ एन आवर पहले आई कैन इन्फॉर्म यू, एटलीस्ट 1 hour आई ट्राई टू इन्फॉर्म, connect so that you can connect to the lecture and then we'll perform the practical। जो क्यूब बन चुका है, वो क्यूब के बाद जो MDX क्वेरी ना, वो मैं कॉलेज से कराऊंगी, ठीक है। We'll be disconnected in seconds. Quickly, I'll give you the attendance link. ज़्यादा हो गया आज तो, फटाफट अटेंडेंस क्लिक करो, सब लोग क्लिक कर लो अटेंडेंस से, so that you don't have to join again. Oh God.